السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسو انفو۔ آج میں آپ کو جدہ ٹاور کے حوالے سے کچھ ایسی معلومات دینا چاہتا ہوں جو آپ نے شاید ہی پہلے کبھی سنی ہو۔ میں آپ کو اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے، اس کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے، اس کے آنرز، اس کے جتنے بھی اس کے اندر جو تاثرات، جو رکاوٹیں اس کے اندر آ رہی ہیں، وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں پوری کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں جدہ ٹاور کیا ہے؟ اسے کون، کہاں اور کیسے بنایا جا رہا ہے؟ کس کے تھرو بنایا جا رہا ہے؟ کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ اس میں کون کون سی مشکلات آ رہی ہیں؟ نہیں پتا تو اب پتہ چل جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو۔ چلیے اللہ کا نام لے کر ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ سال 2004 میں جب دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج خلیفہ کا کنسٹرکشن سٹارٹ ہوا تو اس کے اونرز اور گورنمنٹ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے بنانے میں اتنی مشکلات آئیں گی۔ 2010 میں جب تک یہ بلڈنگ پوری کمپلیٹ ہوئی تب اسے بنانے والی کمپنی امار پراپرٹیز اور UAE کی گورنمنٹ کو اتنا بڑا جھٹکا دیا، اس کے بعد آج تک UAE نے اتنی لمبی بلڈنگ بنانے کا سوچا بھی نہیں۔ UAE نے نہیں سوچا تو کیا ہوا، اس کا پڑوسی ملک ہے نا سعودی عرب، اس نے سوچا اور اس بلڈنگ پر کام بھی سٹارٹ کر دیا۔ سعودی عرب جدہ سٹی میں بننے والی جدہ ٹاور آنے والے وقت لمبی عمارت ہوگی۔ خلیفہ کو بناتے وقت اتنی مشکلات آنے کے بعد بھی سعودی عرب اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن بھلا ہی سعودیہ اس کام کو شروع کروا چکا ہو، لیکن یہ کام اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس میں کئی مشکلات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ ٹاور جہاں پر بن رہا ہے گرمیوں کے وقت میں ٹیمپریچر 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کسی کانچ کی بلڈنگ میں کسی انسان کا ٹھہرنا بہت مشکل ہے۔ دوسرا، یہ بلڈنگ جہاں بن رہی ہے وہ جگہ ایک صحرائی علاقہ ہے اور یہاں کی زمین بہت کھوکھلی ہے، اس لیے یہ زمین اتنی بھاری بلڈنگ کا وزن کیسے برداشت کر پائے گی اور گورنمنٹ اپنا مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، اور جدہ ٹاور دنیا کے سب سے اونچی عمارتوں میں آ پائے گا یا نہیں۔ چلیے آئیے ان سوالوں کے جواب معلوم کرتے ہیں اور اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹاور جو سعودی عرب کے شہر جدہ میں زیر تعمیر ہے، دنیا کی بلند ترین عمارات بننے کا منصوبہ بندی رکھتا ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد اس کی بلندی تقریباً 1008 میٹر یعنی 1 کلومیٹر ہوگی، جو دبئی کے برج خلیفہ 828 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ جدہ ٹاور کا مالک کنگڈم ہولڈنگ کمپنی ہے، جس کے چیئرمین شہزادہ الولید بن طلال ہے۔ یہ کمپنی سعودی عرب کی معروف سرمایہ کاری کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس منصوبے کی ترقی کی ذمہ دار ہے۔ عمارت کا ڈیزائن امریکی معمار ایڈریان اسمتھ نے تیار کیا ہے، جو اس سے قبل برج خلیفہ کا ڈیزائن بھی بنا چکے ہیں۔ ایڈریان اسمتھ نے اس عمارت کو جدید اسلامی فن تعمیر کے عناصر کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے، جس میں 3 اطراف سے پتلی ہوتی ہوئی شکل اور ہوا کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے منفرد ساخت شامل ہے۔ جدہ ٹاور جو سعودی عرب کے شہر جدہ میں زیر تعمیر ہے اور مکہ مکرمہ کے درمیان تقریباً 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ ٹاور مکمل ہونے پر دنیا کی بلند ترین عمارت ہوگی، جس کی بلندی تقریباً 1008 میٹر یعنی 1 کلومیٹر ہوگی۔ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی عمارات جیسے مکہ کلاک ٹاور اسلامی فن تعمیر کی عظیم مثالیں ہیں۔ مکہ کلاک ٹاور کی بلندی 601 میٹر ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین ہوٹل عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ جدہ ٹاور اور مکہ مکرمہ کی عمارات دونوں سعودی عرب کی ترقی اور اس کی ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتی ہے، جہاں اسلامی فن تعمیر کی روایات کو جدید تعمیراتی تکنیکوں کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ جدہ ٹاور جسے کنگڈم ٹاور بھی کہا جاتا ہے، تعمیراتی لاگت کے حوالے سے مختلف ذرائع میں مختلف اعداد و شمار ملتے ہیں۔
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे की मजमूई लागत 7.2 अरब सऊदी रियाल यानी तकरीबन 1.92 अरब अमरीकी डॉलर है। दीगर जरा के मुताबिक लागत 1.2 अरब अमरीकी डॉलर बताई गई है। ये फर्क मुमकिन तौर पर मंसूबे के मुख्तलिफ मराहिल, इजाफी अखराजात या तखमीनों में तब्दीलियों की वजह से हो सकता है। मजीद बराह तामीराती काम की दोबारा शुरुआत के लिए किंगडम होल्डिंग कंपनी ने बिन लादेन ग्रुप के साथ मुआहिदा किया है और इस मंसूबे की मजमूई लागत 7.2 अरब रियाल मुतवक्का की है। ये तामीराती शाहकार जद्दा में 22 बिलियन डॉलर के एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर बनाया जा रहा है। ये टावर मुकम्मल होने पर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होगी, जिसकी बुलंदी तकरीबन 1000 फीटर यानी 3281 फीट होगी। जद्दा टावर की तामीर का आगाज़ 2013 में हुआ था और इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक इसे 2020 में मुकम्मल होना था। ताहम 2018 में तामीराती काम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुअत्तल हो गया। हालिया इत्तलात के मुताबिक 2023 में तामीराती काम दोबारा शुरू किया गया है और तवक्का है कि ये मंसूबा 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। ये टावर मुकम्मल होने पर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होगी, जिसकी बुलंदी तकरीबन 1000 मीटर हो सकती है। इसमें होटल, अपार्टमेंट्स, दफातर और एक ऑब्जर्वेशन डेक शामिल होंगे, जहां से सियाह शहर का नज़ारा कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें दुनिया की बुलंद तरीन ऑब्जर्वेशन डेक होगी और तेज़ रफ्तार से चलने वाली लिफ्ट्स भी शामिल होंगी। टावर की तामीर सऊदी अरब की मईशत को मतवन्ना बनाने और सियाहत को फ़रोग़ देने की कोशिशों का हिस्सा है, जो वज़न 2030 के अहदाफ के मुताबिक है। के साथ साथ अब इसके तामीराती काम के हवाले से भी कुछ मालूमात ले लेते हैं। तामीराती मंसूबे की मजमूई लागत 7.2 अरब रियाल है। मालियाती मसाइल और दीगर वजूहात की बिना पर तामीराती काम 7 साल कबल रुक गया था। अब किंगडम होल्डिंग कंपनी ने बिन लादेन ग्रुप के साथ मुआहिदा किया है और तामीराती काम दोबारा शुरू किया जा रहा है। इमारत की तमीर में मुख्तलिफ तकनीकी चैलेंजेस का सामना होता है, जैसे हवा का दबाव, पानी की फराहमी, तामीराती ताख़ीर वगैरह। दबाव से मुराद बुलंद इमारतों पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है, जिसके लिए खुसूसी डिज़ाइन और साख़त की ज़रूरत होती है ताकि इमारत मुस्तहकम रहे। पानी की फराहमी से मुराद माहिरीन तामीरात का कहना है कि इस बुलंद व बाला इमारत में पानी की फराहमी भी एक पेचीदा मसला हो सकती है, ताहम ये तमाम पेचीदगियाँ दूर करना नामुमकिन भी नहीं। ताख़ीर से मुराद 2013 में जद्दा टावर की तामीर का काम शुरू हुआ था, मगर कई बरसों से काम रुका हुआ है। गुज़िश्ता दिनों में जद्दा टावर की तामीराती काम दोबारा शुरू हो चुका है और इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद की जा रही है कि जद्दा टावर की तामीर मुकम्मल होने पर यह दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। टावर की बुनियाद की तामीर जदीद इंजीनियरिंग तकनीकों और मजबूत मवाद का इस्तेमाल किया गया है ताकि इस अजीम अलशान इमारत को मुस्तहकम बुनियाद फराहम की जा सके। इस मकसद के लिए तकरीबन 57 लाख मुरब्बा फीट कंक्रीट और 80,000 टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। बुनियाद की तामीर के मराहिल में ज़मीन की तैयारी, पाइलिंग, कंक्रीट का इस्तेमाल, स्टील का इस्तेमाल, वायर प्रूफिंग, इन तमाम मराहिल में जदीद तामीराती तकनीकों और मेयार मवाद का इस्तेमाल किया गया है ताकि जद्दा टावर की बुनियाद मजबूत और मुस्तहकम हो, जो इसकी बुलंदी और वज़न को सहारा दे सके। वलीद बिन तलाल सऊदी शाही खानदान के रुकन और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं। सऊदी हुकूमत ने बदअमवाली के खिलाफ एक बड़ी मुहिम का आगाज़ किया, जिसके दौरान मुतअद्दिद शहजादों, वज़रा और कारोबारी शख्सियात को हिरासत में लिया गया। इन अफराद में शहजादा वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। इन्हें कई हफ्तों तक हिरासत में रखा गया, ताहम बाद में रिहाई मिली। इस दौरान इनके कारोबार और मंसूबों पर भी असरात मरतब हुए। वलीद बिन तलाल की हिरासत और इसके बाद के हालात ने जद्दा टावर की तामीर पर भी असर डाला। मालियाती मसाइल और दीगर वजूहात की बिना पर तामीराती काम में ताख़ीर हुई, ताहम हालिया इत्तलात के मुताबिक तामीराती काम दोबारा शुरू हो चुका है और सियासी और मालियाती मसाइल के बावजूद किंगडम होल्डिंग कंपनी और इसकी शराकत दार जद्दा टावर की तकमील के लिए पुरअज़म है ताकि सऊदी अरब की तरक्की और जदीयत की अलामत बन सके। और दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनने जा रही है, लेकिन अभी तक ये खुद भी नहीं जानती कि इसे कब तक मुकम्मल होना है। टावर के मेमार ने इतनी ऊंचाई का ख्वाब देखा कि काम करते करते मजदूरों की गर्दनें दर्द करने लगी। कहते हैं कि अगर आप इसकी चोटी से ज़मीन पर खड़े दोस्त को आवाज़ दे तो जवाब 2 दिन बाद आता है। इसकी तामीर में इतना वक्त लग रहा है कि मजदूरों के बच्चे भी साथ काम करने आ गए हैं। जद्दा टावर के डिज़ाइन इतना मुनफरिद है कि परिंदे इसे देख कर हैरानी से उड़ना भूल जाते हैं। टावर की बुनियाद इतनी मजबूत है कि ज़लज़ले भी इसे सलाम करते हुए गुजरते हैं। अफवाहें हैं कि इसकी चोटी से नीचे देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तामीराती कंपनी ने सोचा था कि ये मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाएगा, मगर मंसूबा इंशाअल्लाह पर रुक गया। कहते हैं कि टावर की बुलंदी इतनी है कि इस पर चढ़ने वाले को ऑक्सीजन मास्क साथ लेकर जाना पड़ेगा। जद्दा टावर जहां ज़मीन और आसमान मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। काम ऐसा है जैसे बच्चे का होमवर्क हमेशा कल पर डलता है। मजदूरों ने कहा छत डालनी शुरू की थी, पर अब तक दीवारें ही ख़त्म नहीं हो रही।
नहीं। टावर इतना ऊंचा है कि आसमान ने भी कहना शुरू कर दिया, भाई बस कर दो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कि मालिक ने वादा किया था जल्द मुकम्मल होगा, मगर जल्द की रफ्तार कछुए से भी सुस्त निकली। अब तो लोग कहने लगे हैं जद्दा टावर ख़त्म होने से पहले शायद दुनिया ही ख़त्म हो जाए। इंजीनियर ने कहा था सिर्फ चंद साल में मुकम्मल हो जाएगा, मगर फिर इन्होंने फैसला किया चंद साल और मज़ीद। टावर की बुनियाद इतनी मजबूत है कि वो खुद भी थक गई है और काम रोक कर आराम कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर जद्दा टावर के पास जाकर एक दिन इंतज़ार करो तो शायद काम मुकम्मल हो जाए। कोई नहीं जानता कि जद्दा टावर कब मुकम्मल होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमें उम्मीद है कि वो कभी ना कभी मुकम्मल होगा। टावर की बुलंदी को देखकर लोग हंसी हंसी में कहते हैं पहले काम ख़त्म करो फिर आसमान को छूना। आखिरकार जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो सब लोग हंस कर कहेंगे ये टावर नहीं बल्कि एक तवील तरीन मजाक था। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिले तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।